not your effort, my effort. Both of you are raising your own मैं मेहनत करती हूँ. आंटी इसकी गवाह है कि आंटी हमेशा बोलते हैं कि ये तेरी वजह से. मेरी बर्थडे हमेशा श्रावण के मंथ में होती है 16 अगस्त. सो बहुत बार या जन्माष्टमी या गोकुल अष्टमी मेरी बर्थडे पे है और इस बार गोकुल अष्टमी. बहुत बार हुआ ऐसा. सो ये वो तो आई ऑलवेज I always know कि he is my best friend anyway. कौन से बना है कृष्णा? मेरी नानी का नाम लगा था. इसलिए मम्मा did not pick my name राधिका और राधिका रखना था. as your manner of life. This is a matter. Yeah, this is use it as a daily doing. लेकिन जब सिखा रहा है तो बता नहीं क्या नहीं उसका सब कुछ चक्कर है. Keep on silent. Keep on silent. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम. जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय
सीताराम भगवान की जय। जय श्री अयोध्या धाम की जय। जय श्री अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Welcome all of you and happy Ram Navami. Same to you. Ram Navami to you also. Hare Krishna. So this is first time on Ram Navami I am out of the temple Yes. because I didn't have cooking seva today Okay. because temple is undergoing renovation. So they are having very few items in the prasadam. So no need of elaborate cooking. So I could travel. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So we are on the second chapter of the Bhagavad Gita. Yada yada hi dharmasya glanirvabhati bharata. So Krishna and Rama, they keep coming time and again to remind us to chant their holy names. So that's how today at 12 o'clock Lord Ram will descend in Ayodhya. And during that time we will be chanting his name, Hare Krishna, and we will welcome him in our life and in our heart and in our home with big Jagannath deities. We are only small ones. They're small, you don't know when they will expand and become big. That's how they enter, small one. They entered with one Mahamantra, Yes. expanded into so many Mahamantras. Hare Krishna. That's how Krishna is. Yes, so in the second chapter, we have been studying section number, I think. Which section? Text 46 right now. No, section. Section. First section is verse number 1 to 11. 1 to 11. Arjuna's question and surrender. Surrender and. Then verse number 11 to 30, characteristics of the soul. आत्मा कौन होता है? आत्मा क्या है? And then 31 to 37, कर्मकांड. वैदिक यज्ञों से कर्मकांडी यज्ञ करो और स्वर्ग चले जाओ. बट देन कृष्ण कहते हैं स्वर्ग भी क्या है? टेम्पररी है. इसलिए आप स्वर्ग में जाने की चेष्टा मत करो. You come back to me. So then begins the next section, that is section of Karma Yoga, verse number 38 onwards. 39 rather, 38 till 39 to 53. 53. So we are about to complete this section, and in this section we have studied so far that how there are two paths, Karma Kanda and Karma Yoga. Krishna is contrasting these two paths in the verse number, I think 40 to 43, right? Yes. If I am not wrong, yeah. Yamimam pushpitam vacham prabodhanti avapashchita. Avapashchita means
the person who cannot discriminate between right and wrong. And the characteristic of Bhakti Yoga or Karma Yoga or any spiritual path was described in verse number 40 and 41st. 40 was नेहा विक्रमनाशस्ति प्रत्ययान विद्यते. थोड़ा भी अगर भक्ति करेंगे बहुत काम में आता है during the time of crisis. And 41st was one who is on this path is one pointed towards his goal. He is resolute in his determination, not irresolute. And the one who is trying to enjoy the senses is not focused. He is always distracted and disturbed. Bahu shakahi anantasya. And then in the 44 verse, again Krishna tried to, 42, 43 and 44. कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य से आसक्त होते हैं वो लोग वन पॉइंटेड नहीं हो सकते, राइट? Opulences and sense gratification, भोग and ऐश्वर्य, material enjoyment and material opulences. One who is attached to them, not that one who is possessor of that. You can possess anything, but if you become attached, then it becomes difficult even to perform your worldly duties also because of attachment. Then in the verse number 45, Krishna said, just go beyond the Vedas, because Vedas they generally deal with the three modes of material nature, Sattva, Rajas, Tamas. And all these three modes are entangling, binding. Even Sattva गुण में हमें इस जगत से बांध देता है, हमने देखा था last time, right? तो इसलिए कृष्ण कहते हैं just go beyond Vedas. And then in the 46th verse, then he starts, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत. Yeah, somebody read the translation. All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. Yes, क्या समझ में आया आपको इसमें से? If you have learned about the Vedas, then you have knowledge and you know how to implement them in your life. But what Krishna, yeah, that is one part. But what Krishna is saying, It is important Just- to know the purpose. you try to know the purpose of the Vedas. Yes. What is the purpose of the school? To teach. Whom? To learn. For teacher, it is to teach. Yeah, for the school, I thought you said. For the student to Learn. learn. But what is the purpose of learning? Get knowledge. Really? I heard first time. You never, tell your kid to go to school to get knowledge. It's just to know the way of life, to become a better person, to No. get a direction. These are all just superficial shells outside the main. To manage to again earn money. हरे कृष्णा. To understand that. ये सब बाहर कोटिंग रहता है, बट अंदर अगर आप समझो इतना पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं मिला आपको और पैसा ही नहीं मिला, वो धिक्कार है तेरे पढ़ाई के ऊपर, गाली देंगे लोग, you're useless. And there have been people who are useless. बहुत लोग ऐसा होता है ना, नहीं मिलता है जॉब, हाँ जी. पर नहीं मिलता है जॉब तो परेशान तो रहेंगे नेचुरली. हाँ तो मैं स्कूल में सिखाते हैं वो काम नहीं आता है. हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, स्कूल में बच्चों को थोड़ी आप लोग भेजते हैं ज्ञान अर्जित करने के लिए, अच्छा बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए. अगर स्कूल में बच्चे जाते तो जितने भी आज स्कूल से पास आउट होकर निकलते हैं अच्छे बच्चे होते वो, हाँ, पूरा इंडिया अच्छा हो जाता, पूरा दुनिया अच्छा हो जाता. They say education, but it is not education. Prabhupada says this is Shilpa Vidya. Shilpa Vidya means you know how to, sculpturing मालूम है ना, sculptor Yes. या फिर carpenter. What is engineering? Carpentry. मीन्स जो मूर्तियाँ बनाते हैं. हाँ वही मैं बोल रहा हूँ. ये घर बनाना मतलब क्या है? Art. कौन सा आर्ट है? It's some mechanical work. You learn anywhere. Just because you know more than a normal, village person who knows how to build a home, because you have a degree and you know a little bit of techniques and here and there, doesn't make you educated person. Chanakya Pandit says who is educated? Matravat Paradareshu. The one who can see, except for his wife, anyone as his mother. Where is this education? In the modern schools and colleges. परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरों का धन कचरे समान देखना. अगर रास्ते में गिरा भी हो,
यूजलेस, मेरे काम का नहीं है, ये किसी और का है। या फिर बेस्ट यूज इज पिक इट अप, अगर कोई क्लेम करने नहीं आ रहा है उठाओ उसको और समाज सेवा में लगा दो, अगर उठा नहीं रहा है कोई तो। बट डू यू सी लाइक दैट? अगर गिरा हुआ नोट दिखे, 500 का नोट, 5 रुपए का कॉइन दिखेगा तो 5 रुपया छोड़ते क्या आप लोग? कभी गिरा हुआ मिला तो You put it, or you give it to, yeah, that is second, but first is that, right? Tradition होता है। So the point is, कहाँ से आए थे? Purpose. To make you understand one word, Hare Krishna. The purpose of education, so-called education of the modern society, is actually just to, to get our livelihood. That's it. Nothing more than that. And फिर कुछ ऐसे संस्कारी स्कूल रहते हैं जहाँ पे सिखाया जाता है, प्रेयर मीटिंग वगैरह होता है. That is another thing. But primarily, parents they send their children to school for earning livelihood. In one sense देखा जाए तो, in true sense. और बच्चे बेचारे ऐसे होते हैं कि सीनियर केजी जूनियर केजी से ही उनका 6-6 घंटे का ड्यूटी लग जाता है. तो मॉडर्न एजुकेशन हैज बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड. बच्चे पहले हमारे ज़माने में हम लोग तो बहुत मजा किए बचपन में. वी यूज्ड टू गो टू स्कूल एंड एंजॉय, फिर भी पास हो जाते थे. आजकल के बच्चों को कभी कंपटीशन नहीं था. क्या नहीं था? हमारे टाइम पे तो था कंपटीशन, बट सोशल मीडिया नहीं था. आज सोशल मीडिया इतना प्रोपेगेंडा करता है. आपका बच्चा अगर इस इंटरनेशनल स्कूल में नहीं पढ़ रहा है तो उसको नौकरी नहीं मिलने वाली है. पहले से बोल देते हैं वो. इफ इज नॉट इन दिस पर्टिकुलर स्कूल और ये उसका स्टेटस स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए तो आपका बच्चा नहीं. लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मराठी मीडियम वालों को हाईएस्ट मार्क्स आते हैं. गवर्नमेंट का कुछ हरे कृष्णा. इंटरनेशनल स्कूल वालों को कुछ नहीं मिलता. मेरा ग्रैंडसन इंटरनेशनल हरे कृष्णा. सो इट इज लाइक दैट. इंटरनेशनल में जाना ही नहीं चाहिए. मैं तो कभी भी बोलूँगी वो लोग OLPS में We have to stick to the essence, purpose. हरे कृष्णा. बाद में discuss करेंगे. हरे कृष्णा. सो मेरा कहने का उद्देश्य था कि किसी भी चीज का पर्पस समझने का कोशिश करो. Yes. Similarly, Krishna is trying to tell, try to understand the purpose of the Veda. All these things are detail. Knowledge लेना, यज्ञ करना, ये करना, वो करना. Ultimately, what do you want? Ultimately, आप यज्ञ करेंगे और आपको कुछ चीजें मिलेंगी देवताओं से. उससे क्या करना चाहते हैं आप? You want to enjoy, right? You want to enjoy the life, isn't it? इसीलिए अगर आज मॉडर्न टाइम में कुछ चीजें अगर हमको यज्ञ करके नहीं मिलती हैं तो लोग उससे लेते हैं. They say we don't need to perform all these yajnas. We are getting from scientists. We are getting from our modern techniques. जैसे अभी कोई बोलेगा घर के अंदर घर भी चाहिए मेरे को, विंटर में तो आप लोग हीटर लगाते हैं ना. They say no need of sun or no need to put a one purifier. हमारा हम साइंटिस्ट लोगों ने बनाया है. तो आप बोलेंगे फिर सचमुच फिर वेदों की क्या जरूरत है, देवताओं की क्या जरूरत है, राइट? बट एक्चुअली व्हाट दे आर मेकिंग इज नथिंग बट कन्वर्टिंग दैट पर्टिकुलर नेचुरल फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू दिस फॉर्म एंड ट्राइंग टू यूज इट. बराबर है कि नहीं? यहाँ पंखा घूम रहा है, हवा चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने हवा बनाया है. आपने बनाया हवा नहीं ना. हवा कहाँ से आया है? किसने? कोई फैक्ट्री है क्या हवा बनाने का? नहीं ना. हवा है, उसी को घुमाते हैं तो घूमता है, बोलते हैं हवा आ गया, मैंने बनाया पंखा. सी, बट एक्चुअली देयर इज वायुदेव हु इज द प्रेसिडिंग डीटी ऑफ द वायु, हवा. एंड इफ ही इज नॉट प्लीज्ड देन ही कैन कॉज हरिकेन्स. होता है ना. हम लोग को स्कूल में वेदास पढ़ाया जाता था, चार सामवेद. बट आपको एसेंस नहीं पढ़ाए हुए हैं. बस उतना मालूम. हाँ, जस्ट खाली नाम बताए गए वेदों के. They didn't tell you the essence. That's why we have come here to study. So इसीलिए जब तक आपको पर्पस नहीं मालूम पड़ेगा, then you are actually missing the whole, utility of that particular item. तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, where is that? Yeah. यावान अर्थोदक. Now he is giving one example to illustrate this. What is the example? And what is the concern of Arjun? Actually, Arjuna's concern is कि अरे वेदों को मैं अगर इस तरह से
पीछे छोड़ के आगे तरफ जाऊंगा तो मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूं? जस्ट लाइक यू हैव बीन टोल्ड चैंट हरे कृष्णा एंड डोंट वॉच मूवी, डोंट ड्रिंक टी, डोंट ड्रिंक कॉफी। मैंने अभी तक बोला नहीं आप लोगों को, लेकिन है नहीं क्यों नहीं मैं बता रहा हूँ जस्ट। ऐसी भी दिखी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको कही है ना 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 करके, राइट? देयर आर 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। नो मीट ईटिंग, No intoxication. बराबर? नो मीट ईटिंग मतलब इट्स अ बिग सैक्रिफाइस। नो इंटॉक्सिकेशन मींस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी हैव बीन एडिक्टेड टू, वी हैव बीन टोल्ड टू गिव अप। No gambling. इंटॉक्सिकेशन उसमें चाय आता है, कॉफी आता है, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब सब आता है। आप बोलेंगे फिर बच गया क्या जिंदगी में? चाय कॉफी अल्कोहल के साथ कैसे आता है? Because it contains caffeine. हाँ। Caffeine is intoxicant. You go to Google and search it out. You will find out. मतलब हर्बल चाय बहुत टेस्टी। And one Google is here. मंदिर में चाय मिलती है ना। कौन से मंदिर में? हरे कृष्ण। हर्बल टी रहती है, हर्बल हर्बल टी वही तो बोल रही हूँ, हर्बल टी मिलता है। इसमें कैफीन रहता है, हर्ब्स, हाँ। जड़ी बूटियाँ जो आपको दिमाग को फ्रेश बना दे। हम वही पीते हैं। I'm just telling you. वो डाउट है। So when it is told that you don't eat meat, उसमें मांस, मछली, अंडा सब कुछ आ गया। आप में से बहुत सारे लोग वेजिटेरियन है, मैंने सुना है। You're all vegetarian, right? हरे कृष्ण। नहीं बोलना चाहिए पर नहीं। झूठ थोड़ी बोलने के लिए बोल रहा हूँ मैं। सच बोल रही आज तो रामनवमी भी है। नहीं आज के दिन नहीं। हरे कृष्ण। So this has been told. रात्रि में नहीं। हाँ, अच्छा मतलब सीजन वाइज है। ओके, कोई बात नहीं। So Krishna is telling you give up this, you give up this, no gambling, no intoxication, no meat eating, no illicit sex. So you may think अरे मुझे सब कुछ छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, जैसे अर्जुन को बोल रहे हैं कि डोंट बॉदर अबाउट वेदास, वेदा में ये दिया है वो दिया है, ये देवता की पूजा करोगे ये मिलेगा, ये देवता की पूजा करोगे ये मिलेगा। These are all pompous ceremonies given in the Vedas to attract somehow towards Vedas. But then when you get attracted to Veda, try to understand what is the essence of the Veda. Don't get caught up in that. इसलिए कृष्ण कहते हैं transcend that, go beyond that and see ahead. आगे क्या है? वेदों के आगे वेदों के भी भाग होते हैं. Don't just caught up in the Karmakandi portion of the Vedas. Try to see where are Upanishads. You know, try to see where are उपासना कांड. उपासना कांड मतलब जहाँ पे भगवान विष्णु का वर्शिप कहा जाता है. Try to understand all these देवतास, इनका भी कोई मालिक है क्या? कि देवता इंडिपेंडेंट है कि दे आर डिपेंडेंट है? Try to analyze that. Then you may say, अरे I am trying to go ahead but I have a doubt if I am missing something, something important I am missing, something important like you have been told not to take this, not to take that, this, that. Oh my God, I am missing all this. So Krishna is saying, you may think you are missing so many things in life. But then what is the purpose of all these so many things you want to enjoy, right? Ultimately इन सब चीजों से क्या करना चाहते हैं आप? Enjoy करना चाहते हैं life. And what Krishna is trying to tell you, I also wanted to enjoy, but try to understand what is the way to enjoy and how to enjoy. इसलिए यहाँ पे उदाहरण क्या दे रहे हैं? He is giving one example, right? All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. क्या समझ में आया आपको इससे? कुछ भी नहीं समझ में आएगा आपको, बिकॉज आपने कभी ये उदाहरण देखा ही नहीं है। ओके, सो लेट्स एनालाइज दैट। हरे कृष्णा, मिलेगा, समझ में आएगा थोड़ी देर में। पर आपको भी इससे समझ में आ रहा है? Yes. बिकॉज आवर हार्ट इज लॉन्गिंग फॉर व्हाट? लव एंड हैप्पीनेस, isn't it? So ultimately anybody, either he is a devotee or a non-devotee, he is searching after happiness and pleasure, because that is our swabhava. In the Brahma Sutra or Vedanta Sutra it is said, Anandamayo Vyasat. We are all trying to search actually happiness, and we are meant to get happiness, right? And if you go to the Vedic portions, Vedas, they may promise you so many processes which tell you that do this and you will get this pleasure, do this and you will get this pleasure. Barabar hai? And all these pleasures, they are actually not really pleasures. They are all sources of misery. आप बोलेंगे हमको तो ऐसा नहीं सिखाया गया स्कूल में। वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको स्कूल में कुछ भी नहीं सिखाया गया, ना ही हमको कुछ सिखाया गया है। हमारे सारे स्कूल हमको यही सिखाए हैं, पढ़ाई करो मजा आएगा,
तो हाफ चड्डी वाला बच्चा सोचता है मेरा फुल पैंट कब होगा, हाफ चड्डी में मजा नहीं आता है। जब हम लोग हाफ चड्डी पहन कर स्कूल में थे ना, अरे यार मेरा फुल पैंट कब होगा, वो दूसरा फुल पैंट वाले को कैसे मजा करता है। तो धीरे धीरे फुल पैंट हो गया, फुल पैंट होने के बाद उसको समझ में इसकी कीमत कितना भुगतना पड़ता है। बोला यार आई थिंक मैं अभी जूनियर कॉलेज में हूँ, यू नो, आई थिंक दिस सीनियर्स आर देयर एंजॉयिंग अ लॉट। उनका कलरफुल ड्रेस होता है, मेरा तो एक ही कलर है, स्कूल में एक ही रहता था ना पहले यूनिफॉर्म, बट यू गो टू द सीनियर कॉलेज यू हैव एनीथिंग यू कैन वेयर, राइट। दिस लुकिंग कब वहाँ जाऊँगा यार, हाफ पैंट का फुल पैंट हो गया, फुल पैंट का बेसिकली इज ट्राइंग टू से कलरफुल, मतलब ये कलरफुल लोग चाहिए मुझे, जोड़ियाँ बनानी है, यू नो। वो देखता है कि अरे लड़का लड़की एंजॉय कर रहे हैं, अरे यार मैं छोटा हूँ अभी तक, आई थिंक आई शुड आल्सो ट्राई टू एंजॉय। बट कब तो गया वहाँ पे, यू नो, जब वहाँ जाता है कुछ समय यहाँ वहाँ भटकता है किसी के साथ यहाँ वहाँ, फिर पढ़ाई भी कर लेता है, फिर बीच में तकलीफ भी होती है, कोई कुछ बोल देता है, यू नो, हार्ट ब्रेक भी हो जाते हैं लोगों के। जमाने में ऐसे होता है नहीं अमन, हरे कृष्णा। So it happens, and nowadays because of social media it happens quite often. Because social media में कैसा होता है ना, मैसेज में कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होता है। When you write something to someone, the emotions are not communicated in the words. टेक्स्ट में इमोशंस कम्युनिकेट नहीं होते हैं, इसकी वजह से बहुत मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। कहने के लिए कम्युनिकेशन, बट इट क्रिएट्स लॉट ऑफ मिसकम्युनिकेशन। When you personally speak, you can convey your emotions. Suppose you want to say someone something, I am very angry on you. But what you type on the message, I am very angry on you. How can you express your emotion? I am very angry on you. मैसेज तो मैसेज है, I am very angry on you. Not angry. तो कोई लिखेगा आप जैसा दोस्त मुझे आज तक मिला नहीं, you are so nice. But it doesn't convey full emotions. So that's why it has become even more challenging to sustain relationships in the age of social media. तो फिर वो उसको ऐसे कैरेट दिखाते रहते हैं पेरेंट्स, तो काम कर, पढ़ाई कर, अच्छी नौकरी करेगा ना, एंजॉय करेगा लाइफ। अब जो नौकरी करे उनको पूछ लो, हरे कृष्णा, फिर बोलते हैं अरे बेटा कोई बात नहीं, जब शादी होगा ना तेरा यू विल एंजॉय। अब पूछ लो जिन्होंने शादी करके बैठे हैं वो लोग, हरे कृष्णा। फिर भी उसको होप नहीं गया है संसार में, जीव का आनंद भोगने का इच्छा नहीं गया है, सोचता है शायद बच्चे होने के बाद एंजॉयमेंट मिलेगा। चलो बच्चा भी हो गया, अब तो गया। नाउ योर लाइफ इज नॉट योर लाइफ, देन योर लाइफ इज डेडिकेटेड टू योर चिल्ड्रंस, फैमिली, सोसाइटी। इस तरह से बेचारा स्ट्रगल करते करते सोचता है ये बच्चे कब बड़े होंगे यार। फिर बच्चे एक बार अपनी लीला दिखाना चालू करे तो फिर वो अलग दुनिया है। चिल्ड्रंस दे आल्सो मैनिफेस्ट देयर ओन पास्ट टाइम्स, उनका भी अपना कर्मा रहता है। आप अपना कर्मा झेल के थक गए, अपने साथ रहने वाले लोगों का कर्मा झेल गए, अभी बच्चों का अपना लीला चालू होता है। फिर बच्चा कहीं कुछ कांड कर देता है, कुछ कर देता है, हरे कृष्णा, सच एन एंजाइटी, यू नो। आप लोग मिलते हैं ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मेरा बच्चा ये कर दिया, मेरा बच्चा वो कर दिया, वो कर दिया, कैसे इसको समझाऊं, कैसे क्या करूं। एक तो माता जी थी, उसका बच्चा फुल ड्रग्स, कितने उम्र का रहेगा, आई थिंक 8वीं 9वीं 10वीं का बच्चा रहेगा, कंप्लीटली एडिक्टेड टू ड्रग्स। उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालना पड़ा, अभी भी उधर ही रहता है। फिर घर में आता है तो मम्मी डैडी छुपा के पैसा चुराता है, यहाँ वहाँ जाके क्या क्या, सच अ हॉरिबल थिंग, हरे कृष्णा। सो इट इज़ लाइक दैट। एंड ऐसे करते 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 बेचारा बूढ़ा हो जाता है, स्ट्रगल करते करते करते। एंड द ओल्ड पर्सन इज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, you know, especially in the old age. If in the youth, if we have not cultivated spiritual practice, in the old age it becomes even more frustrating because you can't enjoy also, you can't control also. दोनों चीज़ें हाथ से निकल जाती है। एंजॉय नहीं कर पाता, बॉडी सपोर्ट नहीं करता है, कंट्रोल नहीं कर पाता कि कोई सुनता नहीं उसका, डबल फ्रस्ट्रेशन। एंड दैट्स हाउ ही passes away from this world to take one more birth. So this is the journey that goes on in search of happiness. इसलिए हमने पहले क्या स्टडी किया था, ये पूरा जीवन जो हमारा लाइफ है इस तरह से रिवॉल्व होते रहता है। And we are life again and again, every life, you know, every birth we are just entangling
इस वेदों के पोर्शन में यहाँ से मिलेगा, यहाँ से वो मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ऐसे करते 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 कष्ट पा रहे हैं। इसलिए एक्चुअली एक जगह कहते हैं दैट आवर डिजायर टू गेट लव एंड हैप्पीनेस इज फार फार फार, आवर नीड इज एक्चुअली फार फार बिग, बट व्हाट द वर्ल्ड प्रॉमिसेस इज वेरी स्मॉल। बराबर ना? जिनको अनुभव है उनको अनुभव है, they can relate to their life। इच्छा बहुत है, इतना आनंद चाहिए, लेकिन मिलता है इतना, क्योंकि दुनिया इतना ही दे सकते हैं, वो भी है नहीं एक्चुअली, बट वी थिंक थ्रू अवर मेंटल कॉन्कॉक्शन। वो गीता में आगे आएगा, इसी अध्याय में आएगा। ऑल द whatever things in this world we try feel that this is giving me enjoyment, this is giving me frustration, or this is giving me whatever is just mental concoction। मन का तर्क वितर्क है और कुछ नहीं है। बिकॉज कोई चीज किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, किसी को बहुत पसंद आती, मतलब क्या है यार, चीज तो वही है ना। हाउ कैन दिस हैपन? Constitutionally we are all soul, we are supposed to be servant of God, but rather than trying to be servant of God, we are trying to enjoy ourselves, and that's how उसको enjoy करने के लिए माइंड जो है apparatus, this mind is software, वो कुछ ना कुछ बकता रहता है। आई थिंक इसमें मजा आएगा, आई थिंक इसमें मजा नहीं आएगा, इसमें मजा आएगा। फाइनली बोलता है किसी में मजा नहीं आएगा, तू बेकार है, तू मर जा, दुनिया छोड़ दे। सो दैट्स व्हाई कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि rather than trying to go this way that way, यहाँ वहाँ दुनिया भर में हैप्पीनेस ढूंढने के लिए, इसलिए वैदिक पोर्शंस में जो कर्मकांडीय सेक्शंस दिए हैं, उसमें जो चीजें, स्पेशली व्हेन यू कम टू गॉड एंड व्हेन यू आस्क फॉर समथिंग मटेरियल, वेरी डेंजरस। इसलिए इफ यू सी द भागवतम, श्रीमद् भागवतम या फिर रामायण, इवन देयर वो कहते हैं ऐसा, यू माइट हैव हर्ड दिस, मोर टीयर्स आर सॉट और शेड बिकॉज ऑफ प्रेयर्स दैट आर फुलफिल्ड देन प्रेयर्स दैट आर अनफुलफिल्ड। सुना कभी? वापस रिपीट करता हूँ। More tears are shed because of prayers that are fulfilled than prayers that are unfulfilled। हरे कृष्णा। जिसने, वो कहते हैं ना, दूध का जला हुआ क्या छाछ भी फूक फूक के खाता है, पीता है, वैसे हमारी हालत है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल, यू गो टू द श्रीमद् भागवतम 6th canto, देयर वाज वन किंग, चित्रकेतु महाराज। उसकी कितनी रानियां थी? 1 करोड़। हरे कृष्णा। इट इज डॉक्यूमेंटेड इन द श्रीमद् भागवतम। हाउ मेनी वाइफ्स? 1 CR। ठीक है, बट एक भी बच्चा नहीं था उसको। हरे कृष्ण, एक भी बच्चा नहीं था। तो जरा सोचो, व्हाट विल बी द फ्रस्ट्रेशन लेवल? ही वाज अ किंग, चक्रवर्ती सम्राट of the entire Bhumandala, having wives 1 crore, but no children. What a frustration, my God! What a frustration! Hare Krishna. फ्रस्ट्रेट क्यों होने का? आश्रम में जाओ, अपने बच्चे उनकी सेवा करो। फ्रस्ट्रेट क्यों होने? You can say no because you are वानप्रस्थ आश्रम। आप जब जवान थे तो वैसे बोल सकते थे क्या? आजकल कितने सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं भेजते। आजकल बच्चे पैदा नहीं करते, जॉब करते लोग, बच्चे बच्चा ही नहीं चाहिए आजकल चेंज। नहीं, ऐसा है, वो अलग बात है, बट बच्चों को जन्म देना हमारे हाथ में नहीं होता है। लेकिन इट इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। इट इज नॉट दैट बिकॉज ऑफ मैन एंड वुमन कम टुगेदर एंड देन देयर विल बी किड। नो, नथिंग, दिस डजंट हैपन। Sometimes a man may be fertile and woman may be fertile, both. ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। Children may be born, but he's just, can't survive only. बहुत लोग आजकल देखा है, डेस्टिनी होती है और कुछ नहीं। So now what happens? This Chitraketu Maharaj, he was lamenting like anything. मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, रो रहा था। तो one time नारद मुनि and अंगिरा मुनि, what happened to that direction? She is glancing like that, as if shooting arrows with
So Narad Muni, Angira Muni, they came in the court of Chitraketu Maharaj. ऐसे आते थे पहले साधु संत घर में, you know. It was not like our modern times. कोई घर पे आया तो भी उसको बार बार चेक करेंगे, भाई इसका आधार कार्ड चेक करो. It was not like that. These were well-known sages. And Chitraketu Maharaj also was Chakravarti Samrat. They came on, you know, his door. तो घर में बुलाया, रिसेप्शन किया, प्रसाद दिया, शांति से बिठाया. Then king started crying. अब नारद मुनि और अंगिरा मुनि ये बोलने लगे कि हम यहाँ पे आए हैं आपको कुछ आध्यात्मिक उपदेश देने के लिए. We want to give you some spiritual instructions for your welfare. But he was crying. मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास बच्चा, वही चैंटिंग कर रहा था. उसका चैंटिंग वही था 16 वाला का, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं. आज एक राउंड पूरा हो गया, दूसरा राउंड बच्चा नहीं है. Narad Muni and Angira Muni, they could understand this fellow is not ready to receive spiritual instructions. And they told him, "Arey, why are you crying for things which are not going to make you happy? Better you take some spiritual instruction and become devotee and be happy." समझाने की कोशिश किया, नहीं समझे, जिद किया, नहीं मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए. तो फिर अंगिरा मुनि ने अपने मिस्टिकल पावर से उनको कुछ दिया, खीर दिया, कुछ तो दिया. यू नो, रामायण में भी आता है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब करते हैं, यू नो, दशरथ महाराज. That in itself is such tempting subject right now to discuss. You know, because 12 o'clock. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Sita Ram Bhagwan ki Jai. Shri Ayodhya Dham ki. Jai. So Ram Lalla is born in the Ayodhya, but he is trying to tell, take me as your children. Hare Krishna. मुझे अपना बच्चा बना लो. तो यहाँ पे अंगिरा मुनि, he could understand he is not ready. समझाने का प्रयास किया, बड़े रोते रहते, मेरे को बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए. फिर उन्होंने कुछ दिया वो रानी को खाने के लिए, खीर, अपने मिस्टिकल पावर से. समझ गए कि अभी रेडी नहीं है स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन देने के लिए. Sometimes it happens. Some people are not ready to receive instruction, then no point in giving them instructions. Better, you know, be with what they want. They will learn then by experience. मार खा के भी समझ जाते हैं. अंगिरा मुनि गए, उनको दिया खीर, ये लोगों ने, बाद में रानी ने खा लिया. उसमें से एक, जो 1 करोड़ में से एक रानी थी कृतद्युति करके, उस रानी को खीर खिलाया राजा ने. उनकी प्रिंसिपल क्यों थी, उससे उनको गर्भवती हो गई और एक बच्चा हो गया. सच अ स्वीट बेबी. अब अगर सोचो 1 करोड़ स्त्रियों में से एक स्त्री ने अगर एक बच्चा जन्म देगा तो फिर वो रानी का स्टेटस क्या हो जाएगा. हरे कृष्णा. And that's how it starts becoming source of misery for the king, for the entire kingdom. Then eventually this story goes on in the Bhagavatam. Right now we are in the Bhagavad Gita. So we will fast forward this. तो ऐसा होता है कि चित्रकेतु महाराज, then he started spending his, you know, all the time with that queen only. Even दशरथ महाराज के साथ भी ऐसे होता है. He would spend a lot of time with Kaikeyi. And that's how Kaikeyi was the favorite queen, and that's how Manthara could see, oh, this is the way I could exploit. And then Manthara tried to, you know, वो आपको मालूम है रामायण में. इधर भी ऐसा ही हो गया. अब तो क्या, राजा रानी के पास रहता था, बाकी रानियां सोचने लगी, अरे क्या हो रहा है, ये राजा तो हमारे पास आता ही नहीं है, केवल इसके पास जाता है, कृतद्युति के पास, और बच्चे को लगे गोद में खिला रहा है, उड़ा रहा है, हवा में चूम रहा है. अब ये रानियों ने क्या किया, बाकी बचे भी, 99 lakhs, 99. sorry, Whatever budget. you heard this story? Very long back. Yeah, long back. This is a very quite well known, popular story in the Srimad Bhagavatam. जो भागवतम सुनते हैं उनको तो स्टोरी पता ही रहता है, अगर नहीं पता है मतलब भागवतम सुना नहीं है आप लोगों ने. इवन भागवत सप्ताह में ही बताते हैं. So this चित्रकेतु महाराज, you know, he was thinking कि I will become happy by having this child, but actually it became the source of greatest anxiety for him. जितने भी बचे रानियां थी, इन्होंने क्या कर दिया, इस रानी के जो बच्चा था ना, उसको पॉइजन कर दिया, जो बच्चा था, क्योंकि they were thinking ये बच्चा ही कारण है हमारे दुख का. और इंटरेस्टिंगली इस बच्चे का नाम क्या रखा था, जब इसका नामकरण हुआ, इस बच्चे का नाम रखा गया हर्ष शोक. What was the name? Harshishu. हर्ष एंड शोक.
properly indicating this child is going to give you शोक. राजा सोच रहा था क्या शोक देगा बच्चा, हो सकता है थोड़ा मेरी बात नहीं मानेगा, खेल खेल में किसी से मस्ती करेगा, झगड़े करेगा, यही शौक देगा ना. राजा वाज थिंकिंग लाइक दैट. सो हर्ष मतलब थोड़ा प्लेजर मिला शुरुआत में कि बच्चा हो गया, मेरे को बच्चा हो गया, बट इट वाज गोइंग टू गिव अ बिग शोक. दैट्स हाउ हिज नेम वाज हर्ष शोक. जब रानियों ने मार दिया बच्चे को, हरे कृष्णा, देन इट बिकेम सच. अभी क्या है, कुछ चीज नहीं होती और हम दुखी होते हैं, अलग बात होती है, लेकिन कुछ चीज को हम प्राप्त करते हैं बड़े कठिनाई के बाद और फिर उसको खो देते हैं, तो इट बिकम्स इवन ग्रेटेस्ट मिजरी. इतना राजा चिल्ला चिल्ला के रोने लगा. रानी भी, और रानी रुद्रदिति ये भगवान को गाली देने लगी. एक ऐसा क्रिएटर है, जानता नहीं है, बड़ों के जाने के पहले ही बच्चों को उठा लिया. She started chastising Lord only. The king started crying, and all the queens जो बचे हुए थे उनको भी मालूम पड़ा, अरे बाप रे हमने क्या कर दिया. They also could realize later. मतलब कैसा होता है कि the material situation is arranged in such a way, however pious you may be, however good intentions you may have, once you get into that trap of enjoyment, it can disturb your or bewilder your memory. ये गीता में आगे आएगा इसी अध्याय में. Completely bewilder कर देता है. You can't discriminate what is good bad. क्या इनको मालूम नहीं रहेगा क्या? राजा की रानियां थी, धर्म के हिसाब से राज परिवार चल रहा था, वेदों के हिसाब से राज कारोबार चलता था, इनको मालूम नहीं था क्या कि ये पाप है, हत्या करना है इनका. बट इतना दिमाग उनका खराब हो गया बिकॉज ऑफ एनवी. फाइनली चित्रकेतु महाराज जब इस तरह से रो रहे थे, नारद मुनि वहां पे आ गए वापस. हरे कृष्णा. अंगिरा मुनि नारद मुनि दे केम टुगेदर, बोले अरे बोल प्रभु, हाउ आर यू, मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, हाउ इज योर चैंटिंग गोइंग ऑन. नो प्रभु, it so happened I went on a business tour. Then actually what happened, I wanted to expand my business. Good, that's not bad, but I wanted to again expand, and again I wanted to again expand, and I neglected my chanting. I didn't pay any attention to my spiritual life, and now I'm miserable, very miserable. Then Angira Muni says, why are you lamenting? For whom you are lamenting? नारद मुनि ने एक्चुअली बच्चे को जिंदा कर दिया. बोले यू वांट टू सी योर चाइल्ड लाइफ अलाइव, उठ जा बेटा उठ जा, ऐसा करके बोला. बच्चा उठ गया. बच्चा उठ के बोलने लगा, हु एम आई. नारद मुनि बोले देखो तुम्हारे पिता चित्रकेतु महाराज. बच्चा बोला कौन सा पिता? मेरे कई पिता हो चुके हैं कई जन्मों में, ये थोड़ी एक पिता है मेरे, कई जन्मों में मेरे कई पिता हो चुके हैं, कई माता हो चुके हैं. एंड देन दैट बॉय गिव जेवेस्टी कोर्स टू चित्रकेतु महाराज. पूरा जेवेस्टी कोर्स पढ़ा दिया उनको. एंड देन दैट बॉय अगेन स्लिप्ड. एंड देन ऑफ कोर्स नारद मुनि के रीचिंग पावर की वजह से बच्चा जागृत होकर प्रचार भी किया, निकल गया, दूसरे शरीर में चला गया. बाय दैट टाइम चित्रकेतु महाराज बिकेम पीसफुल एंड ही अंडरस्टूड, ओ माय गॉड, व्हाट आई एम डूइंग इन दिस वर्ल्ड, for what I am crying. Something which is of no value, I am giving so much value, which eventually going to become the source of my anxiety and distress. Then he actually renounced everything. तो जो भी उनका रहेगा राजा के बाद का, जो भी जिसको देना था राज्य कारोबार दे दिया, निकल गए भजन के लिए वन में. He became a great, saint. Initially he was worshipping, Narad Muni told him to worship Sankarshan, Lord Sankarshan. Sankarshan is one of the expansion of Lord Vishnu. भगवान विष्णु का अवतार ही है. बोले भगवान का भजन करो आप. देन भजन करते करते ही became the अधिपति of गंधर्व लोक. गंधर्व लोक भी एक लोक होता है जहाँ पे लोग सुमधुर गायन करते हैं. He became the king of गंधर्व लोका, and उनको प्लेन भी मिला. उस प्लेन में गंधर्व के साथ भजन करते करते घूमते थे पूरा विश्व भर में, कीर्तन करते हुए. कीर्तन पार्टी था इनका. So this story has not ended yet. What happened one time, he was just traveling over the Kailash. Kailash पर्वत के ऊपर से जा रहे थे. He saw Lord Shiva sitting with Parvati on his lap, and all the sages sitting around, and Lord Shiva is trying to give instruction on renunciation. Hare Krishna. Renunciation. Yeah, but Parvati was sitting there. Now they are Bhagavan, and they know their status.
And sages also they know these are my worshipable lords, right? But चित्रकेतु महाराज वहां से जाते जाते हंस दिए, अरे 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 क्या हो रहा है यहाँ पे, वैराग्य के ऊपर आप प्रवचन कर रहे हो और पार्वती को अपने गोद में बिठा के रखा है. लॉर्ड शिवा he didn't take an offense. लॉर्ड शिवा बोले कि oh my friend चित्रकेतु, because they were pure devotees. लॉर्ड शिवा could understand चित्रकेतु महाराज is trying to create some pastimes here, you know. तो शुद्ध भक्तों के आपस में बात जो करते हैं तो हमें लगेगा कि ये झगड़ा कर रहे हैं दो डिवोटी. तीसरा जब एक देखता है सोचता है ये दो डिवोटी झगड़ा कर रहे हैं. झगड़ा नहीं कर रहे, उनका आपसी प्रेम का जो भी बात कर रहे हैं आप उसमें घुसो मत. आप उसमें बीच में पड़ोगे तो ये टू टेक, किसी का तो साइड लेना पड़ेगा ना. किसी का भी साइड लेगा तो मर गया, बिकॉज बोथ आर डिवोटीज. इसीलिए वैष्णव, दो वैष्णव के बीच में झगड़ा होता है वहां घुसने का ही नहीं. कान बंद करके आंख बंद कर निकल जाने का वहां से. बिकॉज एज सून एज यू टेक समबडी कि एक का साइड लिया दूसरे को अपोज करना पड़ेगा. जिसको अपोज किया उसका ऑफेंस हो जाएगा आपकी तरफ से, अपराध. सो हियर व्हाट हैपेंड, लॉर्ड शिवा वाज क्वाइट पीसफुल बट पार्वती बिकेम डिस्टर्ब्ड. अरे अरे ऐसे कैसे बोल रहा है ये. देन शी इमीडिएटली कर्स्ड. बोले नालायक, तू मेरा पुत्र होके तुझे अभी तक भगवत भक्ति के लक्षण मालूम नहीं पड़े हैं. भगवान को ने तुझे मालूम नहीं पड़ा है. तो शंकरशन का भक्त बनने की कोशिश करता है लेकिन तुझे मालूम नहीं है. तत्काल तो असुर बन जा. Instantly she gave a curse. You become demon. Then that Chitraketu Maharaj, he became a great heroic demon. In the Bhagavatam, any Purana, जो 18 पुराण होते हैं ना, if you hear the name of Vritrasur, सुना है कभी? नहीं सुना है. मतलब भागवतम पूरा नहीं सुना है, सुनना है आपको. हरे कृष्णा. He became a great monster, but devotee monster. You know, he became बड़ा एक भयानक असुर बन गए. उनका नाम था वृत्रासुर. वृत्र मतलब पूरे आकाश को आवृत्त कर, भयानक. But before that, when he was cursed by Parvati, what was his reaction? चित्रकेतु महाराज क्या बोले? वो नीचे उतरे अपने प्लेन से. नीचे उतर के बोले, oh my mother, even though there is no fault on my side, but I accept this curse very happily. Can you imagine? कौन थे ये? He was a king. He was unhappy. Then what happened? He became happy. No, kid, child, बच्चा मिल गया ना उनको. Try to see the different waves, ups and downs in life. He was a unhappy. Although king, but आप बोले ऐसा कैसा होता है यार? संसार में सब लोग किंग बनना चाहते हैं कि खुश हो जाए, लेकिन किंग भी अनहैप्पी हो सकता है. क्या हो सकता है? पूछो जाके अंबानी से. अनहैप्पी, देन बिकम हैप्पी. पहले अनहैप्पी था, बच्चा मिल गया, हैप्पी हो गया, राइट. बच्चा चला गया, फिर अनहैप्पी. फिर डिवोटी बन गया, हैप्पी. बट देन अगेन इट रिमेन ओनली हैप्पी ओनली. He didn't become unhappy. When he was cursed to become demon, he accepted with whole heart. Yes, I accept. उस समय चित्रकेतु महाराज जब इस तरह से एक्सेप्ट कर लिए कर्स, that time Lord Shiva he tells to पार्वती, देख ली कैसे होते हैं भगवान विष्णु के भक्त. देख लो ठीक से. This is the character of a devotee. He is never fearful of any situation of life. वहां पे एक सुंदर श्लोक आता है, वो कहते हैं स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन नारायण परा सर्वे कुतश्चन बिभ्यति. जो नारायण के भक्त होते हैं, they do not fear either heavenly or hellish. Whichever condition you put them, they are happy because anywhere they go, they do only one thing. What? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. They keep chanting and they become happy. And ultimately Lord is the caretaker. He knows किसको क्या देना है क्या नहीं देना है, इससे कैसे वो मेरे पास जल्दी आएगा. He knows. Then of course that story goes on. We will not go into that. He becomes a demon. उससे connected और एक section है फिर. You know वो demon कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं. Then Lord Indra comes in picture and all that. It's a long story but beautiful story in the Bhagavatam. Then this Vritrasura is killed by Indra. But even though demon, he still remains a devotee within. Consciousness devotee का है, body demon का है.
And while fighting with the devatas, he attacks the devatas. देवताओं को बोलते हैं वो, इंद्र को बोलते हैं वृत्रासुर, जल्दी मारो मुझे ताकि मैं मर के भगवत धाम चला जा सकूं. You know, इंद्र को बोल रहे हैं. It's fully self-realized soul. और कहते हैं कि you stay here only, you kill me, you take over the kingdom, और यहीं पे तुम सड़ जाओ. स्वर्ग में रहकर तुम सोच रहे हो कि भोग करोगे, बट मुझे मार के अगर मैं मर जाऊंगा आपको स्वर्ग मिलेगा. इसमें फायदा तुम्हारा भी मेरा भी, लेकिन ज्यादा मेरा फायदा है. बिकॉज इफ आई एम किल्ड आई विल गो बैक टू गॉड. मैं तो डिवोटी बन गया हूं, बट यू विल रिमेन हियर ओनली टू एंजॉय दिस थर्ड क्लास स्वर्ग. हरे कृष्णा. दिस इज भागवतम. Such are the levels of understanding of different devotees. So here Krishna is trying to tell you the same thing. Why are you bothering about, why are you worrying about, शायद मैं ये देवता की पूजा नहीं कर रहा हूँ तो मेरा इसमें शायद लॉस है. Try to understand your situation right now. Because you are from a background where you have been worshipping so many devatas, so many deities for different purposes, right? एक व्यक्ति के पास सब कुछ तो मिलता नहीं है ना यहाँ पे वैदिक इसमें, बट सबका जो एक मालिक है भगवान विष्णु या कृष्ण, उनके पास सब मिलता है क्योंकि सारे देवता उनके चरणों में बैठे हुए हैं. तो कृष्णा इज ट्राइंग टू से, अरे बाबा दुनिया भर में यहाँ वहाँ छोटे हैप्पीनेस के लिए भटकने से अच्छा मेरे पास आओ, आई विल गिव द बिग हैप्पीनेस बिकॉज आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग. इसलिए वो वेल का उदाहरण दिया है. तो इसको समझाने के लिए मैं समझाता हूँ. ड्यूरिंग ओल्डन डेज इन द वैदिक टाइम लोग कुएं से पानी निकाल के अपना काम चलाते थे, और अलग अलग कुएं हुआ करते थे. बर्तन धोने के लिए ये कुआं, कपड़े धोने के लिए दूसरा कुआं, टॉयलेट के लिए दूसरा कुआं, पशुओं को धोने के लिए तीसरा कुआं, नहाने के लिए चौथा कुआं. ऐसे कुएं हुआ करते थे अलग अलग टू मेंटेन द प्योरिटी. बट उस टाइम में भी उदाहरण देते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारे छोटे कुएं हैं, लेकिन आपके पास अगर एक बड़ा नदी का स्रोत है बहते पानी का फ्रेश, तो आपको छोटे हर कुएं के पास जाने की जरूरत नहीं है. एक नदी आपका काम कर सकती है. आप बोलेंगे फिर हाउ टू मेंटेन द प्योरिटी. हाँ जी, it remains always fresh, pure. So Krishna is trying to tell you, why are you trying to go to this well, that well, Netflix का well, Instagram का well, कहीं पे कुछ कंसर्ट लगा है उसका well, एक फ्रेंड बुला रहा है उसका well, चाय कॉफी का well, मेडिटेटिंग का well, इसका दुनिया भर के हजार चीजें, उसके अपने बिल भरो, उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस. Better you come to me, I will give you happiness far greater than what you have never imagined. Come to me. So this is the essence and purpose of this verse, and that's why if you go to the purport is classic purport. This 46th verse. एकदम beginning से देखिए. The rituals and sacrifices mentioned in the Karma Kanda division of the Vedic literature are meant to encourage gradual development of self-realization. समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए don't get stuck up with only one worship of one देवता, thinking ये देवता मुझे दे रहा है, but आपकी नीड तो बहुत है ना. बट अभी आपको अगर चाहिए कुछ भी, तो better than going to non-Vedic paths, come to Vedic path. कम से कम यहाँ पे आके कुछ ना कुछ तो भगवान विष्णु का कनेक्शन तुमको मिलेगा, right? Within Vedic section. Then he says, and the purpose of self-realization is clearly stated in the 15th chapter of the Bhagavad Gita. The purpose of studying the Vedas is to know Lord Krishna, the primeval cause of everything. ये 15 वर्ष अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिया गया है, वेदस्य सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम. कृष्ण कहते हैं वेदों का संकलन करता मैं हूँ. I only compose the Vedas, and through Vedas I am to be known and nothing else. समझे कि नहीं समझे? तो लोग एक्चुअली गीता ठीक से पढ़ते ही नहीं है. They are so unfortunate. They may say I am Hindu, मेरे पास गीता है, सब कुछ है, but they really not have understood the essence of Vedas and Gita. नहीं तो जो व्यक्ति ठीक से गीता पढ़ेगा, even from the Jivavishti course, he will start chanting Hare Krishna or any mantra of Vishnu, that which actually guarantees liberation. You may chant name of Ram or Krishna or any Vishnu Sahasranam or whatever. You will get liberation, moksha from this world. But people don't understand only. So self-realization means understanding Krishna and one's eternal relationship with him.
The relationship of the living entities with Krishna is also mentioned in the 15th chapter of the Gita, 15.7. The living entities are part and parcel of Krishna. Therefore, revival of Krishna consciousness by the individual living entity is the highest perfectional stage of Vedic knowledge. Right? And then नीचे वो एक दिया है quotation. ये भागवतम का 3rd canto का quotation है. अहो बद स्वपच तो गरियान. You know, ये इसका ट्रांसलेशन क्या दिया गया है? नीचे देखिए, ठीक से पढ़िए इसको. Oh my Lord, a person who is chanting your holy name, although born of a low family like that of a Chandala. Chandala मतलब कौन जानते हैं ना? Dog eater. Outcast. Who is not within 4 varnas and 4 ashram. बराबर नहीं माता जी? नहीं माता जी सब डॉक्यूमेंट कर देगा नोट्स. Yes, she makes. For you. Yeah, I did that. Hare Krishna. So Chandala means outcast. The one who is eating dog, जो मांस खाने वाले लोग हैं उस कुत्ते का, उसको डॉग ईटर कहते हैं, you know, नॉर्थ कोरिया. हरे कृष्ण. So then he says, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति भी भगवान का नाम लेता है, तो वो क्या है? Is situated on the highest platform of self-realization. Such a person must have performed all kinds of penances and sacrifices according to Vedic rituals and studied the Vedic literature many times after taking his bath in all the holy places of pilgrimage. Such person is considered to be the best of the Aryan family. आप समझे कि नहीं अभी सेंस? अगर कोई व्यक्ति वैदिक फॉलो कर रहा है, ठीक से कर्मकांड, ब्राह्मण है, लेकिन भगवान का नाम जप नहीं करता है, तो वो क्या है? इससे भी नीच है. हाँ, क्योंकि भगवान का नाम ले लेता है वो. खाली तथाकथित ब्राह्मण बनने से काम नहीं चलेगा आपका. तो आपको समझ में नहीं आया शास्त्रों का सार क्या है? इफ यू चैंट होली नेम, यू हैव performed all types of sacrifices, austerities, visited all the holy places, गंगा जमुना सरस्वती सब स्नान हो गया आपका. लेकिन अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी भगवान का नाम स्मरण नहीं करोगे, तो यू आर अनफॉर्चुनेट. तो इसलिए प्रभुपाद आगे कहते हैं, so one must be intelligent enough to understand the purpose of the Veda without being attached to the rituals only, and one must desire to be elevated to the heavenly kingdoms. Right? Must not desire to be elevated to the heavenly kingdoms for a better quality of sense gratification. It is not possible for the common man in this age to follow all the rules और इसके बाद भी कोई बोलेगा नहीं हम तो वेदवादी हैं, हम वेदों को ही फॉलो करेंगे. तो प्रभुपाद कहते हैं बेटा अच्छा वेदों को फॉलो करेगा. प्रभुपाद कहते हैं